بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین 22 اپریل مقبوضہ کشمیر میں پہلگام کا جو واقعہ ہوا جس میں 27 افراد اپنی جان سے دو بیٹے جس میں مسلمان بھی شامل تھے۔ ناظرین اس واقعے کے کچھ ہی منٹس بعد مودی سرکار اور ان کا جو گودی میڈیا ہے اس نے جو زہر اگلنا شروع کیا اور اپنے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فیلئر کو چھپانے کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، اس کے خلاف پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا گیا اور پاکستان کو سنگین دھمکیوں سمیت جو ہے وہ کچھ اعلانات کیے جس میں آبی جارحیت بھی شامل ہے۔ پاکستان بھارت کے تمام جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان الرٹ بھی ہے، ویجیلنٹ بھی ہے اور صرف افواج پاکستانی نہیں بلکہ ہماری حکومت، ہماری تمام سیاسی جماعتیں اور ہر پاکستانی افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ناظرین پاکستان نے اس معاملے کو اب تو گزر چکے ہیں کافی دن اس کو سفارتی طور پر بھی بہترین طریقے سے اٹھایا ہے اور آج اس میں ہم نے کامیابی بھی دیکھی۔ UNSC کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں بھارت کو سفارتی ناکامی ہوئی اور ساتھ ساتھ یہی نہیں بلکہ بھارت تو اب پاکستانی میڈیا سے بھی ڈر گیا ہے۔ پاکستان کے یوٹیوب چینلز کو کافی چینلز ہیں جن کو انہوں نے پابندی لگا دی ہے، بلاک کر دیا ہے۔ یہ تو رہے وہ معاملہ جو پاکستان خود دیکھ رہا ہے، لیکن عالمی دنیا بھی پاک بھارت کشیدگی کو بڑے سخت طریقے سے کیننگ آبزرویشن کے ساتھ اس کو دیکھ رہی ہے اور جو مختلف جریدے ہیں، مختلف جو ممالک ہیں ان کے ریئیکشن بھی سامنے آ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز کا جو ایک میگزین ہے اس میں ایک آرٹیکل جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ اس حوالے سے بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی بھارت جو ہے نا وہ بلا جواز پاکستان پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے پاس جو افواج ہے وہ اتنی طاقتور بھی نہیں ہے، ان کی اہلیت بھی نہیں ہے اور اس میں آدھی فورسز کے پاس تو جدید ہتھیار بھی شامل نہیں ہے۔ مگر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے ناظرین کہ اس وقت مودی سرکار اور جو ان کا میڈیا ہے جو کہ پرچار کر رہا ہے بھارت پاکستان مخالف، ان کی جو جھوٹ کی ہنڈیاں ہے وہ بیچ چوراہے میں پھوڑ دی اور پھوڑی کس نے؟ بھارتی جنتا نے، وہاں کے صحافیوں نے، انٹلیکچوئلز نے اور ان کے ریٹائرڈ فوجی افسران نے، اور بڑے سخت قسم کے سوالات، سینسیبل سوالات مودی حکومت سے کیے، جس کا ریاکشن یہ ہوا کہ مودی سرکار نے اپنے ہی ان لوگوں پر جنہوں نے سوالات اٹھائے تھے ان پر سیڈکشن کیس جو ہے فائل کر دیا۔ یقیناً یہ سب جو ہے مودی سرکار کی بوکھلاہٹ کا جو ہے ایک ثبوت ہے۔ اس وقت پاکستان جو ہے اس معاملے کو جس طرح دیکھ رہا ہے اور اس میں جو ایک ہم نے دیکھا کہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ آج ہی کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کو چیئر کیا، چاروں وزراء اعلیٰ اس میں موجود تھے اور بھارت کے جو یک طرفہ قانونی اقدامات ہیں اس کی مذمت کی گئی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی بھارتی جارحیت کے تناظر میں اتحاد اور یکجہتی کا پیغام پاکستان دیتا آ رہا ہے اور پاکستان پرامن ملک ہے لیکن اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل میں سینٹ میں بھارتی اقدامات کے خلاف قرارداد بھی ہوئی جو کہ بھرپور پذیرائی سے پیش کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ اس میں جو پانی روکنے کی صورت میں جو آبی مفادات کے تحفظ کا جو حق رکھتا ہے پاکستان، اس کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ چونکہ پرائم منسٹر صاحب یہ بات اور ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں انہوں نے یہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ ایک پیغام دیا ہے بھارت کو کہ اگر آپ نے پانی روکنے کی کوشش کی تو ہم اس کو وار کنسیڈر کریں گے اور اس کا منہ توڑ جواب دیں گے کیونکہ یہ ہماری لائف لائن ہے۔ اسی پر بات کریں گے، اپنے پینل کا تعارف کرا۔ میرے ساتھ فارمر ایمبیسڈر شاہد کیانی صاحب موجود ہیں، میرے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تمام مہمانوں کو ویلکم کرنا چاہوں گی۔ شاہد صاحب، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اتنے دنوں سے معاملات چل رہے ہیں اور یقیناً پاکستان کا بڑا ہی ذمہ دارانہ ایک ریئیکشن ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس کو ہم اپنی سفارتی کامیابی سے بھی جوڑ سکتے ہیں جو آج ہم نے یونائٹڈ نیشن میں دیکھا۔ سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بھارت کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ لیکن جی اصل میں وزیر اعظم مودی نے یہ آپ کی آواز ریباؤنڈ کر رہی ہے۔ ہلو جی سر آپ بولیں۔ یہ وزیر اعظم جو مودی ہیں انہوں نے جو اپنی قوم کو جو جس طریقے سے اوپر لے کر گئے ہیں کہ بھئی جو ایک موڈ بنا لیا ہے کہ جی ہم نے جنگ کرنی ہے، نہ پروف ہے نہ کچھ۔ ابھی میں آپ کو بتا دوں باقی تو چینلز جو بھی ہیں یہ 2 دن سے CNN BBC تو پوپ کی وہ دکھا رہے تھے فیونرلز اور سب کچھ، لیکن ڈاچ ٹی وی ہے وہ بڑا نون جرمن جو ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے، انہوں نے جو ڈسکشن 1-1.5-2 گھنٹے کی میں نے کل دیکھی وہ کمال تھی، جس کے اندر کہیں بھی نظر نہیں آتا تھا کہ وہ جو انڈین موقف ہے اس کو سپورٹ کیا جائے۔ تو یہ مودی سرکار نے جو اب ایک اپنی قوم کا جو ہے نا وہ ایک جو وار ہسٹیریا بنا دیا ہے، اب ان کو اس کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروف تو ہے نہیں
اگر پروف ہے تو دیکھیں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پی ایم اے کے پریڈ میں کہا تھی کہ آئیں ہم انڈیپینڈنٹ انکوائری کروا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے, یہ میچور قومیں یہی کرتی ہیں. لیکن اب ان کو ایک فیس سیونگ چاہیے. فیس سیونگ کیسے ملے گی؟ اپنی قوم کے دیکھنا, یہاں تک وہ لے گئے تھے کہ اب یہ کرنی, جنگ یہ کرنی ہے. وہاں پر سینئر ایلیمنٹس بھی ہیں. اگر آپ دیکھیں ایک جگہ پر وہ ان کی وہ فوجی قیادت بیٹھی ہوئی تھی تو جرنلسٹ کے سوال جواب دیے بغیر اٹھ کے چلے گئے. یہ میں کل کی بات بتا رہا ہوں جی. تو وہ ایک, ان کو اپنی لمیٹیشن فوج کو پتہ ہے ان کی. اب یہ جو ہے یہاں پر فیس سیونگ کیسے ہوگی؟ میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا, آپ کو بتاؤں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پچھلی ایڈمنسٹریشن تھی اس میں جو پلوامہ کا جب وہ انسیڈنٹ ہوا تو وہ ہینوئی میں تھے, ویتنام میں تھے, اور نارتھ کورین صدر سے بات کر رہے تھے. تو ان کو جو بتایا گیا کہ یہ ہوا تو انہوں نے مل کر, اس وقت چین بھی تھا, روس بھی تھا, بیہائنڈ دا سینز بیٹھ کر اس ایشو کو انہوں نے اس کی ہیٹ جو ہے اس سے کم کی. انڈیا مار کھا چکا تھا, وہ تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے جہاز بھیجے, گرا دیے. جی. اب میں سمجھتا ہوں کہ فیس سیونگ کیسے ہوگی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت امریکہ ظاہر ہے ایک میجر کنٹری, اس کے بغیر تو کوئی چیز ہل نہیں سکتی. اب وہ جو اس وقت امریکہ بزی ہے یوکرین روس کی جنگ بند کرانے میں, ایران کے ساتھ نیوکلیر ایشو پر, اور سعودی عربیہ اگلے ہفتے وہ جا رہے ہیں, پتہ ہے آپ کو, صدر ٹرمپ, اور اس کے ابراہم اکارڈ کی بات کرنے ہیں. وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ اٹینشن ڈیفلیکٹ ہو. میری اوپینین یہ ہے کہ فیس سیونگ کیا ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ there is a large possibility کہ پھر امریکہ وہ بڑے اور ممالک کے ساتھ مل کر اس کو انڈیا کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس کو شاہد صاحب, میں چاہ رہی ہوں کہ ایک کامنٹ آپ کر دیں. یہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہوا ہے, یہ 2 مئی کو ہونا تھا, اس کو پہلے کر لیا گیا, اور اس میں جتنے بھی یہ بھارت کے یک طرفہ غیر قانونی اقدامات ہیں اس کی مذمت کی گئی ہے. اس کی سگنیفیکنس آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس اجلاس کی؟ میں کہتا ہوں جی بہت امپورٹنٹ ہے. سی سی آئی کی ویسی میٹنگ ہونی چاہیے تھی, نہیں ہو رہی تھی, یا اب ہوئی ہے. دکھانا ہے کہ ایک قوم یکجا ہے اس معاملے, اس ایشو پر کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. ہم اپنی حکومت اور اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر انڈیا نے کوئی مس ایڈونچر کی جس طرح 2019 میں کی تھی تو بڑی بری طرح کو مار پڑے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سینٹی پرویل کرنی چاہیے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ کہ وہ یہ کہے کہ ہاں جی ہم نے تو مذمت کی تھی کہ جو سٹیزنز وہاں مارے گئے ہیں سیولین, وہ ہم نے مذمت کی. لیکن سوچنا چاہیے ان کو کہ کیا اس جنگ سے ان کے معاشی طور پر ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا. ٹھیک ہے, اکنامکلی جو انہوں نے جو اپنی ترقی کیا اس میں فائدہ پہنچے گا, وہی دیکھ لیں. اگر فائدہ پہنچے تو کریں, لیکن سینئر ایلیمنٹس کہیں گے یہ آپ ایڈونچر نہ کریں, یہ مس ایڈونچر ہوگی. ٹھیک ہے. مسعود صاحب, پاکستان ایک پرامن اور ذمہ دار ملک ہے, اور پیس کے لیے تو ہر جگہ مشہور ہے. ہماری جو افواج ہے, ہمارے جو فوجی ہیں وہ پیس میکر بھی ہیں, امن مشن میں بھی جاتے ہیں. یقیناً ہم بھرپور دفاع کا ایک حق بھی رکھتے ہیں اور ہماری پوری تیاری بھی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اسکرپٹڈ موو ہمیں نظر آ رہی ہے 1999 سے, کارگل کو لے لیں اور اب لے لیں آپ یہ پہلگام والا جو واقعہ ہے, اس میں بھارتی سرکار کتنی ملوث ہے اپنی ریاستی دہشت گردی میں؟ جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال میں ان کی لانگ ہسٹری ہے, اور اسپیشلی اگر ہم دیکھیں کہ ان کے فاسٹ فلیگ آپریشنز بھی دیکھیں, اسٹیج ریکوریز کرتے ہیں, اسٹیج انکاؤنٹرز کرتے ہیں, یہ اسپیناج میں قطر میں انوالو تھے, ٹیررزم کروا رہے ہیں پاکستان میں, ٹرانس نیشنل ریپریشن کروا رہے ہیں, اکراس دی گلوب جا کے مار رہے ہیں. EU لیب نے ان کو ایکسپوز کیا, اسٹینفورڈ انٹرنیشنل آبزرویٹری نے ان کو ایکسپوز کیا, اسلامک اسٹیٹ خراسان کے ساتھ ان کے روابط ہے افغانستان میں. انٹرنیشنل کمیشن فار ریلیجیس فریڈم نے اب ریسنٹلی کہا رات کو سینکشنز لگنے چاہیے کیونکہ یہ پروسیکیوشن کرتے ہیں. مین لینڈ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کرسچنز کے ساتھ نارتھ ایسٹ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. جنگ دیکھا جائے تو انڈیا ایک روک سٹیٹ بن چکا ہے, اور اس میں ساری دنیا نے ایکنالج کیا ہے. اور پاکستان تو 5 ڈوزیئر جمع کروائے ہیں, 2009 میں پہلا, 2020 میں لاسٹ تھا, اور ہم نے ثبوت بھی دیے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ٹیررزم میں پاکستان میں انوالو ہے. اور جس طرح کے جتنے واقعات ریسنٹ پاسٹ میں ہوئے, بی جے پی کے دور میں جب سے مودی پاور میں آئے ہیں اس کے بعد سے دیکھیں, چاہے وہ اڑی ہو, پٹھان کوٹ ہو, اور اس کے علاوہ یہ پلوامہ ہو, اور یہ ابھی پہلگام والا ہو, یہ سارے بائی ڈیزائنز کروائے ہیں. اسپیشلی جب الیکشنز کی بات ہوتی ہے یا کوئی ڈگنیٹی وہاں پہ آتا ہے تو پبلک اوپینین سیٹ کرنے کے لیے پاکستان کا لفظ اور اسلام کا لفظ یہ یوز کرتے ہیں.
और इंसल्टिंग नैरेटिव्स यूज करते हैं। इवन मोदी जो है, देखिए प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, वो कभी कहता है अभी बड़े बच्चों खानदान वाले बच्चों वाले मुसलमानों को कहता है, अमित शाह टर्माइट कहता है, राजनाथ सिंह इनको मॉस्किटोस कहता है। तो ये हालत है वहां पे। और सिमिलरली क्रिश्चियन के साथ, दलित के साथ जो हो रहा है, तो वो ऐसे हालात है वहां पे। इसीलिए खुशवंत सिंह ने अपनी किताब द एंड ऑफ इंडिया में लिखा था, A miracle can save India. India will disintegrate. It will not be Pakistan or any other power. We will commit hara carry कि हम खुद इसको तबाह कर देंगे। और फिर भी देखे ओबामा भी रिकॉर्ड है, रिसेंटली कुछ साल पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया क्रिस्टीन अमानपुर को, तो उन्होंने कहा था द वे इंडियंस, द बीजेपी लेड गवर्नमेंट मोदी इज ट्रीटिंग मुस्लिम्स और फिर कहा एथनिक मिनॉरिटीज, तो उन्होंने कहा था आई कैन सी इंडिया पुलिंग अपार्ट, कि इंडिया टूट सकता है। तो ये वो हालात है। इन हालात को कवर करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये ड्रामा नचाया। जब जेडी वेंस वहां पे आए हुए थे, खुद ये सऊदी अरब किए हुए थे, सो एक सिचुएशन क्रिएट की और जिसका आज तक सबूत नहीं दे सके। और जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनको एक्सपोज किया है कि इनके पास कोई सबूत नहीं, जो डिप्लोमेट्स को इन्होंने ब्रीफिंग दी, वहां पे सवाल पूछा गया कि आप क्या उस नेबर के साथ लड़ेंगे जो न्यूक्लियर आर्म्ड है, और इस बिना पर लड़ेंगे कि आपके इसका पास का पैटर्न ऐसा था, विदाउट गिविंग एनी एविडेंस। अब ये इनका सौदा बिक नहीं रहा है। नोबडी इज रेडी टू बाय देयर आइडिया। दैट्स व्हाई इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्टेटमेंट को देख लें, सब इनके अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर रिजवान, सीसीआई का जो इजलास हुआ निहायत अहमियत का हामिल इस तनाजुर में भी है कि पाक भारत कशीदगी चल रही है, और इस इजलास में जो है पानी के रोकने के हवाले से भी बातचीत की गई, और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान आबी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ का हक रखता है। और यकीनन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भारत बंद कर सकता है पानी। एक तो उनके अपने अंदर से लोगों ने इसके पोल खोल दिए हैं कि भारत में कैपेबिलिटी ही नहीं है, 20 साल लगेंगे अगर वो पानी रोकना चाहता है। दूसरा, पैसों का जो वो तो उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है कि कितने पैसे खर्च होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज क्या पॉसिबल कितनी लग रही है? क्योंकि ये तो देखिए ना एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और इसमें वर्ल्ड बैंक के बीच में है, ये क्या कितना आसान होगा भारत के लिए? और दूसरा, एक प्रेजेंट सेट नहीं करेगा अगर भारत इस तरह करेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र दरिया जो है वो चीन से जब आता है तो वो चाइना भी पानी रोक सकता है। जी, आपने खुद ही इसमें इंट्रो में बता दिया अपने क्वेश्चन में कि जैसे चाइना के पास एक राइट है, चाइना चीन के ऊपर इंडिया के ऊपर कर सकता है, तो ये भी बिल्कुल एक है। मैं शुरू करूंगा, देखें जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं ना, और जिसमें खास तौर पे आर्बिट्रेशन होती है, आर्बिट्रेशन इस तरफ एक ऐसा अमल है जिसके थ्रू दोनों पार्टीज के ऊपर वो फैसला इम्प्लीमेंट होता है और उन दोनों ने उसको कंप्लाई करना होता है बाई, ये इट्स अ लीगल टर्म कि दोनों ने उसको मानना होता है। अगर भारत इसे सस्पेंड करेगा और पुट इन अबेंस करेगा, इसका मतलब है भारत के ऊपर बहुत सारी लीगल इम्प्लीकेशंस हैं। और दूसरी बात ये आती है कि पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, और इसमें कोई शक भी नहीं है। और दुनिया में भी कहीं आप देखें जहां पे लो राइपेरियन कंट्रीज हैं, उसे इंटरनेशनल लॉ, बैनुल अक़वामी कानून कहता है कि उसकी हक तलफी ना हो और उसके मुताबिक उसको उसका जो हक है, पानी है, उसके इरिगेशन के लिए, उसकी पॉपुलेशन के लिए, उनके लोगों के लिए वो लाजमी मिलेगा। अभी आपने जो कहा कि ये जो इजलास हुआ है, ये बिल्कुल मैं कहता हूं कि देखें इस टाइम जो मैयत पाकिस्तान ले रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ले रही है, वो बड़ी एक रैशनल किस्म की है। इसमें अहम चीज ये भी है कि हमें अगर हिस्ट्री को स्टडी कर लिया जाए कि हिस्ट्री में भारत ने जो कोशिश की थी उस टाइम जब ये इंडस वाटर ट्रीटी जो चल रहे थे, उसमें वर्ल्ड बैंक को या दीगर ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर, अमेरिकन के साथ मिलकर कोशिश की थी, लॉबिंग की थी कि इनको ज्यादा से ज्यादा उसमें मफादात मिले। लेकिन मैं ये समझता हूं अगर हिस्ट्री को स्टडी किया जाए तो ये सामने आता है कि भारत वाज एन अंडरडॉग। इसने कोशिश करके हमेशा इसको तातुल का शिकार किया। जो ही इंडस वाटर ट्रीटी हुआ, दे आस्क्ड पाकिस्तान टू एग्री टू दिस। पाकिस्तान इनिशियल टाइम में आपको पता है कि जब एक मुल्क आता है, बहुत सारे चैलेंजेस पाकिस्तान एग्री कर लिया। और मैं ये समझता हूं अब ये जो भारत का इकदाम है, इसके पास पाकिस्तान के पास दोबारा से एक चीज आ गई है कि पाकिस्तान इसके ऊपर सख्त किस्म की रद्द-ए-अमल दे और इंटरनेशनल जो खासतौर पर वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक को इस चीज को कहे कि ये जो चीज है ना, ये कंप्लाई ना करना, इसके ऊपर बाकायदा भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं। दुनिया में ममालिक ऐसे नहीं रह सकते कि आप खुद अपनी मर्जी से कानून बनाएं, कानून तोड़ें, ऐसा नहीं हो सकता। भारत के ऊपर
सख्त किस्म की सैंक्शंस का मुतालबा किया जाना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि ये वर्ल्ड बैंक ही नहीं, पूरी दुनिया की जो भारत का देखें मीडिया, आप सुन रहे होंगे जैसे वो जंग मुसल्लत कर दी ना, जिंगोइज्म उनका माइंड सेट है कि जंग मुसल्लत कर दे। अभी आप एक और अपने पैनलिस्ट से पूछ रही थी, मैं ये समझ रहा हूं कि जो गोरे वो परेशान है कि भारत के मीडिया को क्या पागल हो गया है कि इन्हें पता नहीं है कि जंग होगी, वो अफराद भी मरेंगे, लोग भी मरेंगे, और इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इनकी फौज वहां से उठ गई है, मीडिया को फेस नहीं कर सकी क्वेश्चन को, ऑपरेशन कैपेबिलिटी नहीं है, प्रिपेयर्डनेस नहीं है, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। लिहाजा आपको एक चीज बताता चलूं कि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है ना, मोदी सरकार इस चक्कर में है कि वो मिसएडवेंचर करके अपना जो वोट बैंक है ना वो बचा ले, उसके सामने कोई इंडिया का मफाद नहीं, कोई लोगों का मफाद नहीं। सर बिहार इलेक्शन भी तो होने वाला है ना कुछ तो करना है मोदी ने। डेफिनेटली आप खुद कहना ना, ये दिस इज ऑल अबाउट प्लेइंग पॉलिटिक्स। मोदी ने जब से आया है, ये भी एक साहब बैठे, मुझे आई कैन नॉट सी हिम एक्चुअली, वो बता रहे थे देखिए वहां पे माइनॉरिटीज के जो हालात किए हुए हैं, और मैं ये देखें आपके तवज्जुह से कहता चलूं, पाकिस्तान ने जो कोशिशें की है ना, इसमें खास तौर पे ताशकंद एग्रीमेंट 1965 वॉर के बाद किया, शिमला एग्रीमेंट किया पाकिस्तान ने, जिसमें भी पाकिस्तान ने रिएक्शन के तौर पर कहा हम भी सस्पेंड करते हैं, लाहौर डिक्लेरेशन किया कारगिल वॉर के बाद, आगरा समिट किया पाकिस्तान ने, उसके बाद जो खासतौर पे पाकिस्तान को फिर इल्जाम लगाया था इन्होंने 26/11 का, उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने डायलॉग शुरू किया। मैं कितना पाकिस्तान ने हमेशा अमन का कोशिश की कि अमन रखा जाए, लेकिन ये इस काबिल नहीं है कि अमन रख सकें। ठीक है शाहिद साहब, अब जैसे पाकिस्तान हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी एक पेशकश की है कि भाई पहलगाम वाक़े का जो है हम आज़ादाना गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात कराने के लिए कमीशन बनानी चाहिए उसमें, लेकिन उन्होंने साथ साथ हवाला ये भी दिया कि जाफर एक्सप्रेस की भी फिर आलमी तहकीकात होनी चाहिए, और पाकिस्तान के पास जो है वो भारत के जो एजेंसी है रॉस के मुलविस होने की शवाहिद भी मौजूद हैं। भारत इस पेशकश को क्या एक्सेप्ट करेगा? मैं नहीं मानता जी, ये कोई भी इस किस्म की इंटरनेशनल जो भी आप समझते हैं ना, कोई कमीशन बिठाएं, ये इस किस्म की बात नहीं होगी। मैं रियलिस्ट हूँ, मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ओपिनियन है ये कि जिस तरीके से क्योंकि देखें जी, वैसे तो मैं आपको बताऊं जो मेजर कंट्रीज है ना दुनिया की, वो काफ़ी हमारी इंडिया पाकिस्तान की जो चपकलिश से काफ़ी नाला है। मैं बता दूंगा आपको, ये अलग इशू है कि ये मोदी सरकार जब से आई है, इन्होंने एक अपना एक ढोंग रचाया हुआ है, मुसलमान और माइनॉरिटीज़ को सबको तंग करना, ये करना। और आप अगर देखें तो इनकी जो इसराइल के साथ जो सिमिलैरिटीज मिलती हैं ना, वो काफ़ी हद तक मिलती हैं। नाम नहात जमहूरियत, लेकिन माइनॉरिटीज़ को मारना और उसको बुरा करना। मैं ये बात आपको कहूँ कि जिस तरीके से पहले हुआ था पुलवामा के वक्त में, अमेरिका भी था, रूस भी, चीन भी था, बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे थे। मेरी ओपिनियन ये है कि कमीशन तो कभी भी नहीं मानेगा मोदी, मैं बता रहा हूँ आपको, कि उसको फेस सेविंग चाहिए, ये तो वो मानने के तैयार, वो कहेगा कि मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान का। मैं ये समझता हूँ कि देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, मेरी अपनी ओपिनियन है कि शायद ये तीन बड़े ममालिक इन दोनों वज़ीर आज़म को कहें कि किसी न्यूट्रल जगह पर बैठ कर इसकी बातचीत कर रहे हैं। ये मेरी ओपिनियन है, क्योंकि इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। अगर फेस सेविंग अगर आपने, अदरवाइज को दूसरा जो मोदी साहब के जो तरीक़ेकार दिमाग में है कि जंग कराया जाए, तो जंग से मैं ये पूछना चाहूँगा उनसे कि भाई जंग से आपको फ़ायदा क्या पहुँचेगा? माशी तौर पर आपको आप पर ये बड़ा गलत इम्पैक्ट होगा इस पर। ये चीज़ आपके दिमाग में सोचनी चाहिए, और फिर इसका आपको कौन सा और एडवांटेज मिल रहा है मुझे बताएं। इलेक्शंस कौन सी होनी है? आप तीसरी दफा तो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, सारी उम्र वज़ीर आज़म आपने रहना नहीं है, तो कोई लेगेसी छोड़ के जाएं, एक ऐसी लेगेसी कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की लेगेसी हो, कि अपने नेबर्स के साथ। मैं आज आपको बताऊं तो मैं फॉरन अरसा दराज रहा हूँ, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, किसी मुल्क के साथ इनके जनाब के कोएग्जिस्टेंस के ताल्लुकात नहीं है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के। सबको इन्हें नाला तंग किया। हम तो खैर 3 जंगें भी लड़ी हमारी, वो छोटे ममालिक हैं, तो ये थोड़ी सी लेगेसी छोड़ के जाएं, एक ऐसी लेगेसी से कहते हैं उसमें सेंस ऑफ हिस्ट्री हो कि हिस्ट्री को कैसे इसको लिखेगी इनको, तो ये सोचना चाहिए उनको। बाकी छोड़े जंगों से कोई आज तक मसला तो हल नहीं हुआ। ठीक है, और जंग तो हम भी नहीं चाहते, पुरान मुल्क है, लेकिन अगर ऐसी कोई नियत रखता है भारत तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मसूद साहब, मतलब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि कोई एडवेंचर करना चाहेगा भारत, कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसे माजी में करता रहा है, जंग की हिम्मत तो उसमें भी नहीं है, लेकिन सर हमने क्या तैयारी की है? हमने अपने टारगेट एयर मार्क किए हुए? जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि ये कोई ऐसा नहीं होता, पीस टाइम में यही सारी कार्रवाइयाँ होती हैं, यही वार गेमिंग होती हैं, ये
اور यही एक्सरसाइजेस होते हैं और जिस तरीके से डेवलपमेंट्स होती हैं हर चीज़ पे नज़र होती है और इसी तरीके से टारगेट की सिलेक्शन हमारी पहले से है, हमारे वेपन सिस्टम तैयारी हालत में है और देखें इसका जो भी रिएक्शन होगा, चाहे वो ड्रामा अगर सर्जिकल स्ट्राइक्स के तौर पे करते हैं उसका जवाब अकॉर्डिंगली जाएगा, चाहे कोई एलओसी पे वायलेशन करते हैं, कोई रेड करते हैं उसका भी जवाब होगा, या कोई मिसाइल वगैरह फायर करने की कोशिश करते हैं तो वो भी फायर उसका भी जवाब दिया जाएगा। और अकॉर्डिंगली हमें पता है कि टेररिस्ट जो अगर वो ट्रेन कर रहे हैं, जो उनकी लोकेशन राजस्थान में कहाँ कहाँ है, कहाँ पे बीएलए के कैंप्स हैं, कहाँ पे सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी वाले बैठे हुए हैं और कहाँ पे इनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, अकॉर्डिंगली जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है, देखें कि हमारे आर्सेनल में स्मॉल जो रेंज से लेके हमारे जो स्ट्रेटेजिक लेवल तक के हमारे पास वेपन्स अवेलेबल है। हमारे पास देखें ना कि शॉर्टेस्ट रेंज जो है हमारे पास नसर है 60 किलोमीटर है और उसके बाद 2750 पे शाहीन है और इसके बाद हमने रिसेंटली जो हमारा अबाबील है विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और वो दुनिया में पाकिस्तान इज द 4th कंट्री है और मल्टीपल वार हेड्स लेके डिफरेंट टारगेट्स पे ये हिट कर सकता है। और फिर देखें हमारी वो भी कैपेबिलिटी है, वी कैन कैरी न्यूक्लियर वेपन्स एयर से भी, सी से भी और ग्राउंड से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर ड्रोन्स भी हमारे पास हैं और हमारे पास वो ज़बरदस्त कैपेबिलिटी है। तो हम तैयारी की हालत में इंशाल्लाह जब आएगा तो आप समझ ले अगर एक मिसाइल आता है तो यहाँ से कम 9 निकलेंगे। ठीक है। सोहेल इकबाल भट्टी सीनियर सहाफ़ी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सोहेल, 22 अप्रैल से अब तक जो है हमने देखा कि जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया गया, जो जहर उगला गया, इसका भरपूर जवाब दिया जा रहा है और हम जो है वो एक समझे कि एक रिजन किस्म की जो है एक्शन में इस वक्त नज़र आ रहे हैं और हम अलर्ट भी बहुत हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे इंटरेस्टिंग वो ये लगी कि भारत जंग तो कर रहा है लेकिन वो तो पाकिस्तानी मीडिया से ही खाइफ हो गया है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए गए हैं। यानी कौमी जो हमारे मीडिया है उसने हमारा जो एक बयानिया था पाकिस्तान का, अमन का बयानिया, भरपूर दिफा का बयानिया, बड़े मौसर तरीके से हमने इनको जवाब दिया है। बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया शादी आपने। और जाहिर है भारत की गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को वो तमाम पाकिस्तानी चैनल्स खटक रहे थे जो भारतीय टीवी चैनल्स के मुकाबले में दलील के साथ बड़े मुदल्लल अंदाज में और हकायक पर मबनी बात कर रहे थे, जहां पर न सिर्फ वो अपने अज़्म और हौसले का भी इजहार कर रहे थे बल्कि उसके साथ साथ भारतीय मीडिया के अंदर जितना झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा था, मन घड़त बातें हो रही थी, उनको बड़े अच्छे और मुदल्लल अंदाज में उनको एक्सपोज भी कर रहे थे। तो उनको ये खौफ पैदा हुआ कि अपनी आवाम को जो गुमराह कर रहे थे मुसलसल, अगर से कि अब तो इंडियन आवाम भी इसके पर उन्होंने भी आवाज उठाना शुरू कर दी है। उनके मुख्तलिफ जो जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग उसके पर मोदी हुकूमत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के वाले सवालात उठा रहे हैं, तो मजबूरन अल्टीमेटली उनको बंद करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद जो भी हथकंडे आजमाले मोदी हुकूमत वो उन हकाइक को और पाकिस्तान के उस जो एक बयानिया है, पाकिस्तान का जो बड़ा मुतालबा है उसको वो तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने बिलखुसूस वज़ीर शहबाज शरीफ ने अलान ये बात की कि अगर जो भारत मुसलसल इल्जाम तराशियां कर रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से, उसके बाद कोई सबूत हैं और तो वो समझता है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, तो हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कराने को तैयार हैं। उस दिन से आप वक्त देख लें तो भारत को मतलब तकरीबन 3 दिन से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और भारत को चिप्स आ चुका है और आलमी सतह के ऊपर भी जिस लेवल के ऊपर उसको हजीमत से दोचार होना पड़ा है और उसकी शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। बुनियादी तौर के ऊपर जो भी उनका प्लान था कि पहले एक जंगी माहौल बनाया जाए, उसको पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी कौम ने और हमारी सिविल और उसकी क़यादत ने बहुत मौसर अंदाज में उसका जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान को बदनाम किया जाए जो उनका एक बड़े एजेंडे का हिस्सा था। और फिर हमने देखा कि अमरीकी सदर ने उनको उनके मौक़िफ़ की तायीद नहीं की। उसके बाद सलामती कौंसिल में गए, वहां पर भी उनको मतलूबा जो चाहते थे कि जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जहर फशानी हो सके, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो, वहां पर भी नाकामी हुई। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया जो अमूमी तौर के ऊपर इस्लामोफोबिया के हवाले से भी वहां पर उसके ऊपर ज़ेर असर रहता है, लेकिन इस पर तो हमने देखा कि जो हुकूमत पाकिस्तान की, वजारत खारजा की और हमारे तमाम इदारों की जो मुश्तरका काविशें थी, उसके नतीजे में इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को रियलाइज किया और वो मोदी हुकूमत का जो एक एजेंडा था पाकिस्तान को आइसोलेट करने का, वो
उसमें मुकम्मल तौर पर सर नाकाम। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो सारे राज अफशा कर दिए भारत के कि जंगी जुनून सवार है उन पे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो गलत किया जा रहा है। दूसरा उन्होंने अपने भारतीय फौज के ऊपर बड़े सवालात उठा लिए हैं न्यूयॉर्क टाइम्स ने। जी बिल्कुल ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने उठाए हैं, उसके बाद ब्लूमबर्ग ने बहुत से सवालात उठाए हैं, और जितना उन्होंने बड़ा ऑब्जेक्टिविटी को मद्देनजर रखते हुए रिपोर्टिंग की है, तो वो अब ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि हम कैसे बात करें, कैसे अपनी दुनिया को मुंह दिखाएं। उसके बाद चीन जो तजारती बहुत बड़ा शराकतदार है इंडिया के साथ, उसने जिस तरीके से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की, पाकिस्तान की कौमी सलामती के मामले के ऊपर पाकिस्तान की शाना बशाना खड़ा हुआ, और पाकिस्तान का जो मुतालबा था कि हम, और जो पेशकश थी कि हम न्यूट्रल तहकीकात के लिए तैयार हैं, चीन ने उस बात को इंडोर्स किया। तो यूं देखा जाए तो इखलाकी, सफारती और साइकोलॉजिकली हर एंगल से भारत ये जंग हार चुका है शुरू होने से पहले ही। लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ हटकंडों से भारत चाहता है, मोदी हुकूमत चाहती है कोई ऐसा सिनेरियो डेवलप हो जहां से उनको फेस सेविंग का मौका मिल सके। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा तरीके से अपना मौक़िफ़ अडॉप्ट कर रखा है कि हम अमन पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है। दुनिया के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी हैं, और रिसेंटली जब इन 6 दिनों में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की तवज्जो मशरकी बॉर्डर पर थी, लेकिन भारत की ये भूल थी कि मगरबी बॉर्डर के जरिए से वहां से ये कोई वारदात डालेंगे, बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई करेंगे ताकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज को और पाकिस्तानी अवाम के हौसलों को पस्त किया जा सके। और फिर आपने देखा कि अफगानिस्तान से जहां इंडिया के फुटप्रिंट्स मौजूद हैं, जहां इंडिया की सपोर्ट से वहां पर खारिज का फितना खारिज मौजूद है, उनकी बड़ी तादाद के अंदर दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की, और पहली मरतबा किसी एक बड़ी कार्रवाई के अंदर 54 दहशतगर्द एक मरतबा मारे गए। ठीक है। उसी इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया तो 17 मजीद मारे गए। तो 2 दिनों में 74 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करके भारत को पैगाम पहुंचा कि जो अपनी इंडियन मास्टर्स के कहने के ऊपर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे, उनको कैसे निपटा गया। ठीक है। और भारत तवक्को रखते हैं सब लोग कि भारत इन हरकतों से बाज आएगा और पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को कमजोरी नहीं समझेगा, बल्कि सबूत फराहम करे पाकिस्तान को भी और दुनिया को भी। ठीक है। डॉक्टर रिजवान साहब, पाकिस्तान जो है इस वक्त भारत की तरफ से जो आबी जारियत है उसके खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहा है, कानूनी तैयारी कर रहा है, और इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में भी जाने का इरादा है। ये कितनी मतलब ये कहेंगे कि बेहतरीन इकदाम है पाकिस्तान की जानिब से? लेकिन शाजिया ये बहुत अच्छा इकदाम है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा लीगल एक रास्ता अपनाया है, लेकिन मसला यह आता है कि भारत को प्रॉब्लम यह हो जाएगी कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना तो भारत उस पर एग्री नहीं करेगा। देखें, लीगली ऐसा होता है कि जब आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई ऐसा लेकर जाना है, ऐसा डिस्प्यूट है, उसमें दोनों पार्टी से एग्री करना लाजमी होता है। अच्छा, इसमें अगर भारत नहीं एग्री करता, पाकिस्तान फिर भी यूनिलैटरली उससे सबमिट कर सकता है, उससे वाज़ेह हो जाएगा, दुनिया को पैगाम मिल जाएगा कि भारत जो है इस चीज को अवॉइड कर रहा है। अच्छा, इसमें 3-4 चीजें हैं। देखें शाजिया, दुनिया में जहां जहां इस टाइम वो लो राइपेरियन कंट्री ना, उनको एक हक देती है, खासतौर पे इंटरनेशनल जो लॉ है उससे हक देता है कि वो ममालिक जो हैं अपने रीजन में जहां वो बसते हैं उस मुल्क में और उस इलाके में, और दूसरा इंटरनेशनली ग्लोबली जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी जो वो सपोर्ट हासिल करें। और इसमें मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता चलूं कि पाकिस्तान के साथ उन तमाम ममालिक की सपोर्ट होगी लीगली। देखें, जब कोर्ट में मुकदमा जाता है ना, तो जज्बात या ये चीजें नहीं चलती, वहां पे सबूत चलते हैं, लॉजिक चलता है और एविडेंस होती है। हमारे पास जितनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडस वाटर, मैं ये वाज़ेह तौर पे कह सकता हूं कि पाकिस्तान को हमेशा एज हासिल रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी आपके जो अपने मुझसे राय ली तो उसमें यही कहना चाहूंगा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी शुरू में जब एग्री किया गया, वर्ल्ड बैंक ने उसको मीडिएट किया, तो उसमें वाज़ेह तौर पे भारत उस वक्त भी जो था अंडरडॉग था, लेकिन उसने कोशिश करके अपनी शातिराना तरीके से पाकिस्तान के ऊपर ये वो क्या कहते हैं कि हावी होने की कोशिश की बाई हैंडिंग इन हैंड इन ग्लव विद द वर्ल्ड बैंक। तो ये जो मामला होते हैं ना, उसमें वाज़ेह तौर पे नजर आ जाता है कि भारत के हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं है। इसमें अमेरिका का, चाइना का खास तौर पे रोल होगा। चाइना एक नेबरिंग कंट्री है, आपने खुद भी कहा, चाइना के हाथ में भी सेम टूल है। और अमेरिका को इसलिए कि 2 न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान में एक शाहिद कैनी साहब हैं, मसूद साहब हैं, उन्हें भी पता होगा, जब बिल क्लिंटन थे और इंडिया ने उस वक्त भी कारगिल पे कोशिश की थी कि इसका नाक तोड़ा खानी पड़ी इसको मुंह की, तो उसमें भी बिल क्लिंटन ने निगोशिएट किया था कि किस तरह का मेंटेलिटी अटल बिहारी वाजपेयी या दीगर जो थे, उन्हें कहा था कि आप निगोशिएट करें, न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। तो ममालिक के साइड में पूरा रीजन, पूरा ग्लोब खतरे में आ जाता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ
इस टाइम जो मेरा ख्याल है कि सिर्फ गीदड़ बत्तियां हैं जो चल रही हैं और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है जो मोदी सरकार से आ रही है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं। ठीक है शाहिद साहब, लंदन में हमने देखा पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जो है तोड़फोड़ की गई और अरेस्ट भी हुआ एक इंडियन। टाइम्स स्क्वायर के बाहर भी एहतजाज करने की कोशिश की गई, लेकिन सर 5 दिन हो गए इस वाक़े को। अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क यानी ट्रंप साहब ने उस तरह से पाक भारत कशीदगी को देखा नहीं, बल्कि मुज़क्का खेज बयान दे दिया कश्मीर की हिस्ट्री के ऊपर। मैं ये आपको पहले जरा एक बात कह दूं, वो जो लंदन में हुआ है वाकया इमेच्योरिश है। ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये होती रहती हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं लोग एम्बेसियों के बाहर। ये तो एक मैं नहीं समझता कोई इसकी कोई अहमियत है। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई अहमियत नहीं है। और वो पकड़े भी गए हैं, 2-3 बंदों को तो उन्होंने ब्रिटिश पुलिस पकड़ के भी ले गई है। मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एट द लेवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने अपने काउंटर पार्ट जो दूसरे मुल्कों के हैं उनके साथ बातचीत भी की है। उन्होंने खुद भी उनको फोन किया और हमने भी इनके साथ जो है बातचीत की है। ये बिल्कुल सही तरीका यही है टेम्परेचर को लो करने का और अपनी मौका बयान करने का और उनकी सपोर्ट लेने का। बिल्कुल ये जो है ये एक जिसे कहते हैं ठीक तरीका है और होना भी यही चाहिए। और अब मैं ये समझता हूँ कि आपने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने कही वो ये थी कि जाहिर है वो उनको ब्रीफिंग चाहिए थी, ब्रीफिंग तो मिली नहीं। वो जैसी जहाज में चढ़े थे, किसने सवाल किया तो उन्होंने ये कह दिया। हालांकि ये बाद में उनको शायद रियलाइज किया हो। इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के दिमाग में जो उनकी जो फोकस है, मैं दोबारा दोहराऊंगा, वो फोकस उनका 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो रूस और यूक्रेन की जंग को बंद कराना, ईरान के साथ न्यूक्लियर जो डील है उसको करना, और तीसरी चीज है कि अगले महीने वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, जहां अब्राहम अकॉर्ड के मुतालिक वो प्रेशर डालेंगे सऊदी अरेबिया पे कि इसराइल के साथ आप एक रिकॉग्नाइज करें। वो होता है नहीं होता पता नहीं है। ठीक, ये जो पाकिस्तान इंडिया का जो एक इशू खड़ा हो गया मोदी सरकार ने किया, ये उनकी अटेंशन को डिफ्लेक्ट करता है। वो मैं आपको बता दूं जिस किस्म के वो हैं उनको पसंद नहीं करते होंगे। मैं अभी फिर दोबारा दोहराऊंगा कि मैं ये कभी कैसे हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान और इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं, जिनको वो कई दफा कहते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज नहीं है ये, कि वो अपनी बिहाइंड द सीन्स एट जो भी उनका लेवल है वो इंडिया और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, मेरी ओपिनियन है, वो बात कर रहे होंगे। अभी इसका पता चलेगा, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये 2 ममालिक जिनके और सारे इश्यूज और मसले मसाइल अरसा दराज चले आ रहे हैं वो जंग करें। और ये मोदी सरकार का तो आपको पता है पहले से इन्होंने कई दफा इस किस्म की हथकंडे अपनाए हैं, जहां पर अपनी कौम की सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। हमेशा इलेक्शन के वक्त में, पिछली इलेक्शन तो उन्होंने काफी वोटें लूज की हैं, इस दफा फिर चाह रहे हैं। ये इस दफा शोशा ये जो उन्होंने छोड़ा है इससे कामयाबी हासिल होगी, मैं नहीं समझता। ठीक है मसूद साहब, अब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में जिस तरह दोबारा जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत अपनी जालमाना जारियत को दोबारा शुरू कर चुका है, घरों को मस्मार कर रहा है, अरेस्ट कर रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं। और ये तमाम चीज़ें आप क्या समझते हैं, ये भी एक प्लानिंग रही है? क्योंकि ड्रामा तो फ्लॉप हो चुका है, लेकिन अब ये इसकी आड़ में मजीद बर्बरियत जारी कर रहा है भारत। जी हाँ, देखें, उसका एक बदला लेने और एक इम्प्रेशन देने के लिए कि ये कश्मीरी थे, इन्होंने ये सारा किया, तो उनको एक वो सबक सिखाने के लिए जिस तरह घरों को बुलडोज कर रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल में देखें कि मज़ीद नफरत बढ़ेगी और मज़ीद जो कश्मीरीज हैं मज़ीद जद्दोजहद के लिए आगे बढ़ेंगे, हुर्रियत पसंदी में आ जाएंगे। जिस तरह मैंने कहा, अभी जो हुर्रियत पसंदी है, जद्दोजहद है, पूरे वैली से निकल के साउथ ऑफ पीर पंजल रेंज जा चुकी है, जिसमें अभी वो इलाके जहाँ पे समझा जाता था कि यहाँ पे के हालात बेहतर हैं, राजौरी में शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा, अभी वहाँ पे हुर्रियत पसंदी आ गई है। इस तरह पुंछ में आ गई है, डोडा में आ गई है, रामबन में आ गई है, कठुआ में आ गई है। और तो ये अगर देखें जिस तरीके से वहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, और प्रोजेक्ट्स नॉट इन लव विद कश्मीरीज, अपने स्ट्रेटेजिक वो रेलवे लाइन लेके आ रहे हैं, रोड ब्रिजेस बना रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ ट्रूप्स और लॉजिस्टिक्स के लिए, तो मेरा ख्याल में कश्मीर के अंदर से वो लॉजिस्टिक्स का भी लेके नहीं आएंगे, न लेके जा सकेंगे। सिमिलरली इंडियन पंजाब में भी होगा। तो मेरा ख्याल में जिस तरह पब्लिक खड़ी हुई है, तो अगर कोई ऐसे ये हरकत करते हैं तो कश्मीर के अंदर उनको बहुत मार पड़नी है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी वैसे सिखों को कहा है, पंजाब वालों को,
कि हाँ यहाँ से कोई लॉजिस्टिक इंडिया के गुजरने नहीं चाहिए। और फिर उन्होंने इंडियन सिखों को भी कहा है कि वो इंडियन आर्मी से जब पाकिस्तान से लड़ाई तो न लड़े। 18% ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस दे आर द सिख्स, तो बहुत बड़ा नंबर है सिख का। तो मतलब इसमें बहुत सारी सिचुएशन इस तरह डेवलप हो रही है, इंडिया के लिए मुश्किलात बढ़ेंगे और इंडिया बहुत वीकर विकेट पे जा रहा है। ठीक है, सोहेल इकबाल लास्ट कमेंट कर दीजिएगा सर, इस वक्त दुनिया पाक भारत कशीदगी को किस तरह देख रही है? देखिए, भारत की सबसे बड़ी कोशिश यही थी कि दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा किया जाए, जो पाकिस्तान ने आलमी सतह के ऊपर अपना नाम दोबारा बनाया है। अमेरिका हो, दोस्त ममालिक हो, पाकिस्तान ने अपने तल्लुकात को मुस्तहकम किया है। उन्हें किसी न किसी तरीके उन तल्लुकात में दरार डाली जा सके, तो मेरा ख्याल में भारत का ये पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस हवाले से जो उनके असल मकासद थे उसमें वो नाकाम हो चुके हैं। और दुनिया ने इस बात की रियलाइजेशन हो रही है, जैसा कि 1995 में की गई, जैसा कि सन 2000 में की गई, क्योंकि भारत की एक तवील हिस्ट्री है। अब दुनिया उसको जान चुकी है। दुनिया की ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज और टेक्नोलॉजी वो सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भारत का ये पुराना ये खेल है जो 1995 में उसने अमेरिकी सियाहों को अगवा करके खेलने की कोशिश की, नाकाम रहा। सन 2000 में इसी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के अंदर उन्होंने सिखों को कत्ल करके अमेरिकी सदर के दौरे से कबल एक पाकिस्तान के खिलाफ राह हमवार करने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान का दौरा भी न करें और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हों, उस पर भी नाकाम हुआ। इस तरह फिर 2007 हो, 2008 हो, 2013 हो, 18 हो, एक तवील एक हिस्ट्री है। तो दुनिया अब रियलाइज कर चुकी है। मेरे ख्याल में अमेरिका से जो भारत को रिस्पॉन्स मिला है, जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल से मिला है, चीन से जो रिस्पॉन्स मिला है, तो मेरे ख्याल में भारत को रियलाइज हो चुका है कि दुनिया उसका जो घनौना चेहरा था वो देख चुकी है। और जो पाकिस्तान के लिए जिसने रास्ते मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश की वो नाकाम हो चुका है। और पाकिस्तान इस हवाले से एक तवाना आवाज बनकर उभरा है, जिसके ने न सिर्फ हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की है, बल्कि जो पाकिस्तान के अंदर जो हाथ दहशतगर्दी में मुलविस थे पाकिस्तान, उनको भी बेनकाब करने में कामयाब हुआ है। तो आलमी बिरादरी इस वक्त पाकिस्तान की मौक़िफ़ को अंडरस्टैंड किया है और भारत इस हवाले से बिल्कुल उनके सामने एक्सपोज हो चुके हैं। भारत के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जब तक कि वो फौरी अनाउंस करे। आलमी दुनिया भी मुतालबा कर रही है, इस बात की तवज्जो दे रही है कि मुश्तरका तहकीकात की जाए, इसकी न्यूट्रल के तहकीकात करवाई जाए ताकि ये मामला क्लियर हो। भारत के पास अगर कोई सबूत है तो मंजर आम पर ला सके, लेकिन इस भारत को बिल्कुल एक वो चुप सा चुका है, उसके पास कोई जस्टिफिकेशन या आर्गूमेंट नहीं बचा। ठीक है, मसूद साहब लास्ट सवाल आपसे ले लेती हूँ सर। अभी कुछ दिन कबल ही ट्रंप इंतजामिया ने जो है वो पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ा है उसको अप्रिशिएट किया था और हमारी फोर्सेस को जो है वो मुबारकबाद और हुकूमत को मुबारकबाद दिया था। अभी ये 22 तारीख को ये वाकया हुआ है और हमने देखा कि 25 और 27 को हमारा बड़ा मैसिव सक्सेस हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को हासिल हुई है। भारत इन तमाम चीज़ों से कितना खाइफ है? देखें जी, ये तो कोशिश इंडिया ने खुद करवाई थी कि ईस्ट पे पहलगाम वाला एक वाकया करवाना था, हमारी कंसंट्रेशन वहां पे जानी थी, तो फिर वेस्ट से उन्होंने ये प्लान किया हुआ था। फिर उनको यही इंप्रेशन था कि पाकिस्तान की अटेंशन डाइवर्ट होगी, तो फिर ये फितना और खारिज जो उनके एक प्रॉक्सी थे आई, तो हमने उनको वेलकम किया, आए तो फिर अंदर मार दिया। तो उनको मैसेज किया कि तुम जहां से भी आओगे अफवाज पाकिस्तान तैयार है और वो रेडी है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल में एक बड़े वाज़ेह मैसेज गया और दुनिया एक्नॉलेज करती है पाकिस्तान की वार ऑन टेरर, और यही स्टांस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पिछले 4 साल से था। अमेरिका ने एक्नॉलेज किया पाकिस्तान का जो स्टांस था कि अफगानिस्तान इज द एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म, और इसके साथ साथ ये अमेरिकन वेपन जो थे वही ये लोग यूज कर रहे हैं। और हमने सबूत भी दिए हैं कि जाफर एक्सप्रेस में भी यही इस्तेमाल हो रहा है, फितना खारी भी ये यूज कर रहे हैं। तो देयरफॉर कि अमेरिका ने हमारा जो आइडिया था उसको बाय किया है। चलें, बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नाज़रीन, और भारत का जो जंगी हमला है वो मुमकिन है ना, पानी रोकना मुमकिन है। अभी तो जंग हुई नहीं और भारत अभी से हार गया, क्योंकि जितना खौफजदा वो पाकिस्तानी मीडिया से हो गया और उसको ब्लॉक कर दिया, ये सबूत है। प्रोग्राम से इजाजत, अल्लाह निगहबान।